Hello viewers, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஜெஃப்னா ஷரீனா யூடியூப் சேனல். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் உமன்ஸ் டே வந்து மார்ச் 8ஆம் தேதி we used to celebrate. It was this year it was on Sunday, therefore in our college Women's Day வந்து நாங்கள் மண்டே 9th March செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ தான் இப்போ இதில் வரப்போகுது. ஐ திங்க் யூ வில் என்ஜாய் இட். இதில் என்னென்னு சொன்னால் அந்த வீடியோ வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து நான் போகும்போது ஓகே வில் டேக் இட் லேட்டர் அந்த வீடியோன்ட்டு அந்த வீடியோ எடுக்கலை. பட் இன்சைட் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ், சில ட்ராமாஸ் அண்ட் ஸ்பீச்சஸ், எவ்ரிதிங் ஷார்ட் வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ let's go inside the video and look what happened in Women's Day and how it nice was. We have presented the spirit of yin yang. The spirit of yin yang is actually increasingly used as a metaphor of women's empowerment by shifting its interpretation from the rigid patriarchal binary to a model of complementary dynamic balance. Rather than viewing yin, which is traditionally known as the female and which represents passive and soft, as the inferior to yang, today it is interpreted that if even the woman doesn't have a mindset of that their children, their child will go for the world. That mindset of we have सुस्त नारी में बात किया हम लोग देखा 58% of the women in our country is enemy. जो जिसका एनीमिया है वो आगे कैसा बढ़ेगा? सुस्त नारी सशक्त परिवार तब बनेगा जब नारी का स्वास्थ्य सुस्त हो। इसलिए हमारा भारत सरकार ने काफी कदम उठाया। This philosophy of Indians brutally murdered, and nothing happened to the rapist has been which is as a doctor we all are from IQC. I was the first to reach there in Gurgaon. In the end, she reveals her true identity as a strong warrior woman and asks Arjuna to accept her true worth lies in her strength, character and identity, and not just her physical appearance. Women should be accepted as শ্রেষ্ঠ চরিত্র মণিপুরমের পদবিদ্যা বিধানগুলো চিত্রাঙ্গনের প্রভাবে নারী শক্তির আত্মমর্যাদা ও বীর গাথার সর্বোত্তম নাট্য সঙ্গীতে দেবী মহামায়াকে বহন করে দেব আজ এই পরিবেশনা।
Joshi, the first Indian woman doctor, on the occasion of International Women's Day. At a time when girls were not allowed to study, she broke social barriers and followed her dreams to serve society. Her courage, determination, and dedication continue to inspire generation of women. Through the skit, we pay tribute to her remarkable journey. 19वीं सदी की उस रूढ़िवादिता के बीच जन्मी एक नई कहानी। 31 मार्च 1865 महाराष्ट्र के कल्याण शहर में एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया यमुना। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की आगे चलकर भारत का इतिहास बदलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, द फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। 9 वर्ष की होते ही आनंदी की शादी उससे 20 साल बड़े लड़के गोपाल राव से तय की गई। ओए यमुना, इधर आ। ये क्या कर रही है तू? बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। चल जाके तैयार हो जा। क्यों माँ? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। लड़का बड़े घर का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा भी है। तू जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। अरे भैया ये बैठिए बैठिए। और सब कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं ठीक तो है। अच्छा बात तो होती रहेगी। बेटी दिख रही है। अरे यमुना जरा इधर आना। जी पिताजी। क्या नाम है बेटा? अपना? जी जोशी। कितने भाई बहन? जी 4 भाई और 3 खाना बना लेती हो? जी हाँ। क्या क्या बना? नहीं बना लेती हो? बेटा कुछ पूछना है? हर बार वही सवाल, उन्हीं सवालों के पुराने जवाब। खाना बना लेती हो, रोटी बना लेती हो, कितने भाई बहन हैं, क्या क्या काम करती हो? अरे और कुछ जाने की चाहत होती है आप में कि नहीं? अरे अरे मालिक गलती हो गई क्या? गलती नहीं, देखिए हमें आपकी लड़की पसंद है। तो हम लोग लेन देन की बात करें। देखिए वैसे तो मैं गांव का इनामदार आदमी हूँ, लेकिन मेरे को देने के लिए सिर्फ मेरी कन्या और नारियल ही है। कन्या और नारियल आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर आपको कन्या और नारियल के अथवा क्या चाहिए? कन्या और नारियल, आप नारियल भी है नहीं, हमें कन्या स्वीकार है। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कैसी शर्तें? विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता हूँ। अरे वो हिंदी अक्षर तो पढ़ ही लेती है और लड़की है, उसको आगे पढ़ा करके क्या करना? पढ़ेगी, वो पुस्तकें भी पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी। यहाँ तक कि अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी भी पढ़ेगी। और इस बात में किसी भी प्रकार का अवरोध मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जैसा आप इन्हीं शर्तों के आधार पर यमुना और गोपाल का विवाह हुआ। और मराठा परंपरा के अनुसार यमुना का नाम बदलकर आनंदी रखा गया। ऐसे ही वर्ष बीते और 14 साल की उम्र में उन्हें मां बनने का सुख मिला। पर हालात कुछ ठीक ना थे। आनंदी, ये देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतनी सारी किताबें? हाँ, तुमने शादी के वक्त मुझे वचन दिया, तुम पढ़ो, तब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है। इश, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और से घर का काम करते हुए शोभा देखेंगे। और देखिए कि कब से रोया जा रहा है। लोगों की बातों के बारे में तुम मत सोचो, वो सब मैं देख। बस तुम्हें अब से पढ़ना। छोड़िए, उसको बाद में देख लेते हैं। पहले देखिए लल्ला कब से रोया जा रहा है। तुम्हें मैंने बोला था, प्रसव किसी शहर के बड़े अस्पताल में जाके करा। तुमने मेरी एक न सुनी। इस समय माँ और बच्चे दोनों को उपचार की बहुत आवश्यकता होती है। ना जी ना, पराए घर से क्यों प्रसव करवाना? और अस्पताल में कोई महिला चिकित्सक भी नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा। ये क्या? इसका सर तो हमारा ऊपर कब रहा है। अरे कोई वैद्य को बुला। ये क्या कर रही हो अब तुम? अरे चुप हो जाइए, ये भगवान जी का विभूति है, जिससे एक क्षण में उसका बुखार उतर जाएगा। देखिए रोना भी बंद कर दिया इसने, और शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। आनंद, क्या हुआ? अब हम
तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं था। क्या क्या बोल रहे हैं आप? बच्चा लल्ला उठो मेरे बेटा। ये क्या हुआ? हे भगवान, तूने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। ये आघात इतना बड़ा था कि आनंदी सदमे से बाहर ही ना आ पाई। बस करो आनंदी, वहाँ कुछ नहीं है। अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो मेरी बातें समझ में आती। तुम सच में अनपढ़ की अनपढ़ रह गई हो। नहीं, मैं आपसे अनपढ़ नहीं रहूंगी, ताकि कल किसी माँ को अपने बच्चों से दूर ना होना पड़े चिकित्सा की कमी में। मैं पढ़ूंगी और लिखूंगी। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उचित इलाज न मिल पाने का दर्द आनंदीबाई के मन में बस गया। तभी उनके पति गोपाल राव जोशी ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और शिक्षा देना शुरू किया, ताकि एक दिन आनंदीबाई डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर सके। अगर मैं सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है? अरे पगली, सूर्य पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। तो सच में गवाह की गवाह रह गई। अरे ऐसे मत बोलिए। अरे देखो देखो कैसे अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा रहा है। आज पढ़ाएगा, कल यही पत्नी इसके सर पे चढ़ के नाचेगी। समझ मेरे भाई, समझ, कलयुग है कलयुग। अगर इसी तरह औरतों को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो एक दिन यह दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए। इस प्रकार समय बीता और आनंदी ने विद्यालय की परीक्षा पूर्ण की। आनंदी, ये देखो, तुम्हें छात्रवृत्ति मिली है। अब तुम अमेरिका जाके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। वाह, अमेरिका? लेकिन इतना दूर मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? अरे पगली, इतना पढ़ाया लिखा, इतना काबिल बनाया, मेरे बिना गुजर बसर नहीं कर सकती। तुम आज भी गवाह की गवाह। बस, मैं गवाह नहीं रही। मैं जाऊंगी और पढ़ूंगी और डॉक्टर की डिग्री लेके आऊंगी। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अपने सपनों की उड़ान के लिए कैलकाटा से अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और वहां पे उन्होंने वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और 3 साल बाद उसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। आज मेरे हाथों में डॉक्टर की डिग्री नहीं, बल्कि सुनहरे भविष्य की चाबी है, जिसमें आज तक अंधविश्वास की सोच का ताला लगा हुआ है। आज भी हमारे भारत में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके सपने चूल्हे चौके की भट्टी में जल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सपनों की उड़ानों की पतंग हर घर में उड़े और हर घर में गोपाल जैसे पति हो, जो उस पतंग को कभी कटने ना दे। करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। डॉक्टर आनंदी गोपाल राव जोशी को न केवल डॉक्टर की डिग्री से नवाजा गया, बल्कि समाज में महिलाओं को रास्ता दिखाया और अपने पंखों को खोल के सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित भी किया। और 26 फरवरी 1887 22 वर्ष की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनका देहांत हुआ और भारत की वो पहली महिला चिकित्सक दुनिया को अलविदा कह चुकी। इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इतिहास रचा और भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। उनका साहस और दृढ़ संकल्प आज भी हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। या तो उन्हें देवी का दर्जा देते हैं या उनका वस्तुकरण किया जाता है। वस्तुकरण अर्थात ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसी को केंद्र में रखकर मैंने कुछ या तो बहन का, मैं या तो माँ की ममता और बहन का प्रेम बढ़ पाऊंगी या A very pleasant evening, everyone. As we have reached the conclusion ceremony, I would like to thank first and foremost our chief guest, Dr. Archana Majumdar ma'am, for her presence in this event. Her remarkable presence and encouragement thoughts has truly enriched us and reminded us the importance of empowering women in every sphere of life. I would then like to thank Professor Dr. Sarvini Sinha, our very own internal committee member. Guys, எல்லாம் முடிஞ்சு நாம் இப்போ ஹாஸ்டல் போயிட்டு இருக்கேன். Going hostel.